یہ کہانی ہے ایسے پیرنٹس کی جنہیں رات کے وقت گھنے جنگل میں ایک بچہ ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس بچے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو انہیں بہت پریشان کرتی ہے۔ کہانی کے شروع میں آپ ایک بچہ دیکھیں کہ جسے اس کے پیرنٹس بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اب وہ دونوں اسے بہت پیار سے پالتے ہیں۔ وہ اس بچے کی زندگی کے ہر پل کو انجوائے کرتے ہیں۔ وقت کیسے گزر جاتا ہے انہیں احساس نہیں ہوتا، اور اب برینڈن 12 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن برینڈن کی مام اسے ہر جگہ ڈھونڈتی ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل پاتا۔ اب وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے تو اچانک سے وہ باہر آ کر اپنی والدہ کو ڈرا دیتا ہے۔ اسی دوران اس کے فادر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو باندھ سے دور رہنے کا کہا تھا تو تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ایسا کرنے سے تم لوگوں کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسکول میں ٹیچر بیز اور واسپ کے بارے میں پڑھا رہی ہوتی ہے جبکہ برینڈن کے علاوہ سب بچے فوکس تھے اور اچھے سے وہ لیکچر کو سن پا رہے تھے۔ دوسری طرف برینڈن اپنی نوٹ بک میں کچھ ڈرائنگز بنا رہا ہوتا ہے جب ٹیچر برینڈن سے سوال پوچھتی ہے اور برینڈن اس سوال کا بہت اچھے سے جواب دیتا ہے جس سے اس کی ٹیچر اس سے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت جب برینڈن سو رہا تھا اور اس کی مام ڈرائنگز بنا رہی تھی تو اس بون میں سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ ان آوازوں کے سنائی دینے کے بعد وہ اپنے روم میں کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اسی بان کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کی مام کو بھی محسوس ہو جاتا ہے جیسے کوئی باہر موجود ہے۔ وہ گھر سے باہر اس بان کی طرف جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے جو کہ اب لکڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے جو خود پریشان تھا کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچا۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی تھی اور اب اس کی موم اس دروازے کو دیکھتی ہے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آتی ہے۔ اب وہ واپس اپنے بیٹے کو اس کے روم میں سلا دیتی ہے۔ اچانک وہاں پر اس کے ہسبینڈ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے جھوٹ بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ شاید وہ نیند میں چلتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اگلے روز برینڈن اور اس کے فادر کوئی کام کر رہے تھے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے ایک دن جب اس کی موم گھر پر موجود نہیں تھی اس نے برینڈن کو کینڈی کھلا کر رونے سے روکا تھا۔ وہ اسے لان موور چلانے کو کہتا ہے۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد وہ اسے چلا تو لیتا ہے لیکن وہ مشین کہیں دور جا کر گرتی ہے۔ وہ بہت حیران ہو رہا تھا اور اب وہ اس مشین کے پاس جاتا ہے اور چلتی ہوئی مشین کے پنکھے کو ہاتھ سے روک لیتا ہے۔ اس طرح کرنے سے نہ تو اسے چوٹ لگتی ہے اور نہ ہی اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے۔ آج اس کی سالگرہ تھی اس لیے سب آج بہت خوش تھے۔ اس کے انکل اور اس کی آنٹ بھی سالگرہ منانے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس کے انکل نے اسے ایک گن تحفے میں دی تھی جسے وہ بہت پسند کرتا ہے لیکن اس کے ڈیڈ اسے وہ تحفہ لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ اپنے ڈیڈ کے منع کرنے کی وجہ سے برینڈن اب غصے میں آ جاتا ہے اور ان سے بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ سب گھر آ جاتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس آج اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ اس کی مام اسے ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ اس عمر میں ہم بھی بہت ضدی تھے لیکن اب انہیں اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ وہ سب اب ایک پکنک آرگنائز کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو ٹائم دے سکے۔ اس کی مام اسے گرم کپڑے رکھنے کے لیے کہتی ہے لیکن برینڈن کا دھیان کسی اور جگہ ہوتا ہے اور اب اس کے فادر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ برینڈن ایک سٹیل کا چمٹا کھا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے موم کو اس کے روم میں ایک ڈائری ملتی ہے جس میں کچھ عجیب سی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اب شکار کے دوران وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کے جسم اور اس کے خیالات میں کچھ تبدیلیاں آتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے سب باتیں شیئر کر لے کیونکہ وہی اپنے بچوں کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ رات کے وقت جب کیمپ میں اس کے پیرنٹس سو رہے تھے تو وہ اپنی دوست کے گھر جا کر اسے پریشان کرتا ہے۔ وہ لڑکی برینڈن کو رات کے وقت اپنے گھر میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی مام کو بلاتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے برینڈن کو کھڑکی کے پاس دیکھا تھا لیکن جب اس کی مام کھڑکی کے پاس آتی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں موجود ہوتا۔ برینڈن کے کیمپ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پیرنٹس اس کو رات کے وقت گھنے جنگل میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کیمپ میں موجود نہیں تھا۔ اچانک سے وہ وہاں پر واپس آ جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی مام اسے لے کر بہت پریشان تھی اس لیے وہ اب اپنی بہن مس میرلی جو کہ اسکول کونسلر بھی تھی اس سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان میں کچھ بدلاؤ ہوتا ہے اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، برینڈن نارمل ہے۔ برینڈن اپنی نوٹ بک میں کچھ خاص طرح کا ٹیٹو بنا رہا تھا۔ وہ اپنی مام کو وہاں پر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت اس کے ڈیڈ کو مرغیوں کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی ولف ہو اس لیے وہ اپنے ساتھ گن بھی لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ برینڈن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دوبارہ سے ان کے چلانے کی آواز آتی ہے لیکن اس بار وہ سب پرندے مر چکے تھے اور اس کے ڈیڈ کو یقین تھا کہ یہ سارا کام اس کے بیٹے برینڈن نے ہی کیا ہے لیکن اس کی مام کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اگلے روز اسکول میں سب بچے کھیل رہے تھے لیکن برینڈن کی دوست اب اسے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب زمین میں گر جاتا ہے جسے اٹھانے کے لیے اس کے ٹیچر اس لڑکی کو بولتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برینڈن کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن برینڈن بہت غصے میں تھا اس لیے وہ اس لڑکی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ اس لڑکی کی مام اس پر بہت غصہ تھی۔ وہ پولیس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اسے اسکول سے سسپینڈ کرنے کے فوری بعد ایکشن لے لیکن پرنسپل فیصلہ کرتی ہے کہ اسے 2 دن کے لیے سسپینڈ کر کے اسکول کونسلر مس میرلی کی کلاس میں بھیجا جائے گا۔ اس کی مام اپنے بیٹے کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اب برینڈن کو اس مس ایریکا یعنی اس لڑکی کی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسکول سے واپس
वापस आने के बाद वो औरत अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता देती है कि उस रात ब्रेंडन को उसने बांध से वापस बुलाया था। उसके वालिद परेशान थे, इससे ना तो चोट लगती है और ना इसका खून बहता है और ना इसकी हड्डी टूटती है, और अब वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। रात के वक्त वही चीज उस बच्चे को अपनी तरफ दोबारा बुलाती है। इस बार ब्रेंडन वहाँ जाकर वो जंजीर तोड़ देता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब उस चीज का असर इस पर मुकम्मल तौर पर होता है। वो अपने होश में नहीं रहता और हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उसकी मॉम उसे वहाँ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जब उसकी मॉम वहाँ पर पहुँचती है, उस चीज का इसके ऊपर से असर खत्म हो जाता है और वो जमीन में गिरता है। उस चीज का कोना लगने से इसे चोट लग जाती है। आज पहली बार ब्रेंडन का खून निकला था। आज उसकी मॉम उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम हमें जंगल में मिले थे एक स्पेसशिप में, और इस चीज से हमने तुम्हें लिया था। तुम बहुत खास हो। ये सब सुनकर वो गुस्से में आ जाता है कि आज तक आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला, और अब वो अपने घर से भाग जाता है। आज पहली बार वो बहुत गुस्से में था। अब वो अपनी दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि वो बहुत खास है, वो सब लोगों से मुख्तलिफ है। वो लड़की घबराते हुए कहती है कि मेरी माम ने तुमसे दूर रहने का कहा है। वो उसे खुद से ना डरने को कहता है और बताता है कि मैं तुम्हारी माम को समझा दूंगा। अब वो उसे एक फूल देकर वहाँ से उसके माम की तरफ चला जाता है, जो कि कैफे में मौजूद अकेली काम कर रही थी। मिस एरिका जब अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो उसे खिड़की में एक खास तरह का निशान दिखाई देता है। ये वही टैटू था जो कि ब्रेंडन अक्सर अपनी नोटबुक पर बनाया करता है। कैफे के अंदर लाइट्स में वाइब्रेशन पैदा होती है। जब मिस एरिका उस लाइट के पास पहुंचती है तो अचानक से एक बल्ब टूट जाता है, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। उसे अब कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को कोल्ड रूम में बंद कर लेती है, जहाँ पर ब्रेंडन आकर उसे मार देता है और अपने साथ ले जाता है। अगले रोज सुबह के वक्त वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बताता है कि पूरी रात वो सोच रहा था कि उसे एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। वो अब अपनी बातों से अपने घर वालों का ध्यान हटाना चाह रहा था। अब अगले रोज पुलिस उस कैफे में जाती है जहाँ पर उस औरत का कत्ल हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर कोई डेड बॉडी मौजूद नहीं थी। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, जहाँ पर उसे खिड़की में वही निशान नजर आता है जो कि ब्रेंडन अक्सर अपनी नोटबुक पर बनाया करता था। अब मिस मैरली, जो कि स्कूल काउंसलर भी थी, उस बच्चे की पहली क्लास लेती है और पूछती है कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये जान के कि तुम्हें गोद लिया गया है। वो नफरत भरे लहजे में जवाब देता है और कहता है मुझे मालूम है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ, और उसे बिल्कुल पछतावा नहीं था कि उसने उस बच्ची का हाथ तोड़ा है। वो उसे कहती है कि मुझे स्कूल की प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। अब रात के वक्त ब्रेंडन अपनी आंट के घर जाता है और उसे डराता है कि कल तुम स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताओगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इससे तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। उसकी आंट उसे घर वापस जाने को कहती है क्योंकि उसे ब्रेंडन की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात जब उसकी आंट सो रही होती है तो वो लड़का वापस दोबारा उसके घर आ जाता है ताकि उसे सबक सिखा सके, लेकिन एन उसी वक्त उसके अंकल भी वहाँ वापस आ जाते हैं, जो कि ब्रेंडन को अपने घर पर देखकर बहुत गुस्सा थे और उसे घर ले जाने के लिए गाड़ी में बैठने को कहते हैं, क्योंकि रात के इस वक्त वो यहाँ पर क्या कर रहा है ये बात उसे परेशान कर रही थी। ब्रेंडन अपने पेरेंट्स को उस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों की ताकत से उसे हवा में उड़ाकर फेंक देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके अंकल घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़का इनका पीछा करता है और रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। अब वो वहाँ से जाने से पहले वही निशान बनाता है। उसके पेरेंट्स घर में परेशान हो रहे थे क्योंकि उसे गए हुए काफी देर गुजर चुकी थी। वो घर आकर उन्हें बताता है कि स्कूल से वापसी पर सोशल गेम खेलने चला गया था ताकि उसके पेरेंट्स को उस पर शक न हो। वो उन्हें बताता है कि मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया और धक्का दिया, जिससे मेरी शर्ट फट गई है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके पेरेंट्स को पता था कि वो उनसे झूठ बोल रहा है। रात के बाद उसके डैड जब सो रहे थे तो उसे एक ख्वाब आता है कि उसकी वाइफ ने एक बच्चा गोद लिया हुआ है जिसके जिस्म से खून बह रहा है और उसकी आंखें खूनख्वार जानवर की तरह दिख रही है। कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। अब उन्हें मालूम पड़ता है कि उस मिस मैरिलीन के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका है। वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ मिस मैरिलीन उनसे पूछती है कि क्या ब्रेंडन सही सलामत घर पहुंच चुका था, क्योंकि कल रात वो मेरे पास आया था। ये सुनकर उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने बेटे के पास आते हैं और बताते हैं कि कल रात तुम्हारे अंकल नोआ का इंतकाल हो चुका है, जिसे सुनकर उसे कोई अफसोस नहीं होता। उसके पेरेंट्स को उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशानी होती है। उसके वालिद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वो उन सब कत्ल का इल्जाम अब अपने बेटे ब्रेंडन पर लगाते हैं, लेकिन उसकी माम उसका डिफेंड करती है। अब ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को दीवार में उठाकर फेंक देता है। उसके डैड का शक अब यकीन में बदल चुका था। जब ब्रेंडन शावर ले रहा था तो वो उसके रूम में जाते हैं ताकि वो शर्ट ढूंढ सके। उसे अब यकीन था कि इनके कजन की मौत के पीछे भी इसी का हाथ हो सकता है। उसके कमरे की तलाशी के दौरान उसे वो शर्ट मिल जाती है जहाँ पर कुछ खून के निशानात भी लगे हुए थे। कि अचानक से ब्रेंडन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर उसके डैड परेशान हो जाते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब वो अपनी वाइफ को वो शर्ट दिखाता है, लेकिन उसकी बातों पर उसकी वाइफ को यकीन नहीं था और वो वहाँ से चली जाती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर इस नोआ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसे मालूम पड़ता है कि इस कत्ल में भी वही निशान मौजूद है जो कि उन्हें उस औरत की किडनैपिंग के दौरान कैफे बार में मिले थे। अब उस पुलिस ऑफिसर को एक लीड मिल चुकी थी जो कि
कि एरिक और नोवा दोनों से जुड़ी हुई थी। इसकी माम को अब अपने हस्बैंड की बातों पर यकीन आ गया था कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है और इन सब कत्ल के पीछे भी उसी का हाथ है। अगले रोज ब्रेंडन और उसके फादर शिकार के लिए जाते हैं। जब वो शिकार के लिए निकल जाते हैं तो उसी वक्त एक इंस्पेक्टर उनके घर में आता है और उसकी मॉम को सब कुछ सच सच बता देता है कि दोनों कत्ल के हादसात में मुझे ये निशान मिला था। क्या आप निशान को जानती है? लेकिन उसकी मॉम इनकार कर देती है। वो घर की तलाशी लेना चाह रहा था लेकिन टोरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब वो उसके रूम में जाती है और ब्रेंडन की नोटबुक खोलती है। उसे वहाँ तमाम सबूत मिल जाते हैं जिससे वाज़ेह था कि इसी ने नोहा और एरिक को मारा है। दूसरी तरफ उसके डैड शिकार के दौरान उस लड़के को गन फायर से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अब वो अपने असल रूप में आ जाता है और अपनी आंखों से लाल रोशनी निकाल कर अपने डैड को वहीं पर मार देता है। उसकी मॉम अपने हस्बैंड को फोन करके सब कुछ सच से बता देती है लेकिन वो कॉल उसके हस्बैंड की बजाय ब्रेंडन सुनता है और अब वो उसे मारने के लिए उस घर में आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है हर जगह तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो 911 पर मदद के लिए कॉल करती है। कुछ ही देर बाद वही पुलिस इंस्पेक्टर उस टोरी यानी कि ब्रेंडन की मॉम की मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो टोरी को घर से बाहर आने को कहता है। अपनी मॉम के बाहर आने से पहले वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार देता है। दूसरी ऑफिसर मदद के लिए पुलिस स्टेशन से राब्ता करने की कोशिश करती है लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पाता। ब्रेंडन अब उसे भी मार देता है। टोरी यानी कि उसकी मॉम अब बहुत घबरा चुकी थी। उसे अपने जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अचानक से उसे याद आता है कि ब्रेंडन को कैसे मारा जा सकता है। वो छत से छलांग लगाकर उसी बांध की तरफ भागती है जहाँ पर वही मशीन पड़ी थी जिसे 12 साल पहले उन्हें ब्रेंडन मिला था। वो उस मशीन के पास पहुंचकर एरिका की लाश को देखती है और घबरा जाती है। उसका सारा शक अब यकीन में बदल चुका था। अब वो उस मशीन में से एक टुकड़ा निकाल लेती है ताकि उस ब्रेंडन को मार सके। वो अब बड़े प्यार से अपने बच्चे को बुलाती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे अपने गले में लगा लेती है। इससे पहले कि टोरी उसे मारे ब्रेंडन को मालूम पड़ जाता है कि वो उसे मारने वाली है क्योंकि उसकी मॉम जानती थी कि उसे मारने का आखिरी हल यही है, बस उसे इस मशीन के हिस्से से चोट पहुंचाकर मारा जा सकता है। अब ब्रेंडन उसे उड़ाकर आसमान में ले जाता है और वहाँ से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मॉम की मौत वाक़या हो जाती है। अब ब्रेंडन की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपनी तरफ बढ़ते हुए एक हवाई जहाज को भी तबाह कर देता है जिसकी वजह से अब सब लोग यही समझ रहे थे कि इस प्लेन क्रैश की वजह से ब्रेंडन के पेरेंट्स की डेथ हुई है। अब किसी को भी ब्रेंडन पर शक नहीं होता और वो आजादाना जिंदगी गुजारता है।